Yeah, I can see it now. Alright. Alright, so थोड़ा सा रिवाइज कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में किया था and that was the last stage of aerobic respiration. The last stage of aerobic respiration involved the process of facilitated diffusion taking place. Facilitated diffusion taking place, but that went through the entire process जिसको कहते हैं oxidative phosphorylation. अब ये facilitated diffusion का process कब आया था? When hydrogen ions were diffusing down the concentration gradient from the intermembranous phase into the mitochondrial matrix through the ATP synthase enzyme. और इस पूरे प्रोसेस को इनसाइड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं केमियोस्मोसिस, क्योंकि यहीं से एनर्जी मिलती है इस एटीपी सिंथेस को, जिसको यूज करके वो एटीपी मॉलिक्यूल एडीपी मॉलिक्यूल्स को फॉस्फोरिलेट करता है, जिससे एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड दिस इज वेयर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में फॉस्फोरिलेशन वर्ड comes from. So we knew it takes place in the ETC, consists of the ATP synthase enzyme, पूरा process होता है, end में oxygen acts as the final electron acceptor, and we also looked at questions as to how would aerobic respiration be affected if no oxygen was available, meaning if no final electron acceptor was available. And we also discussed a question of how the mitochondria as a structure is adaptive or has adaptive features in order to allow for oxidative phosphorylation to take place सबसे ज्यादा efficiently. आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है anaerobic respiration. So throughout all of these classes we looked at aerobic and now we will be looking at anaerobic respiration. अगर इसके वर्ड्स को देखें anaerobic, it has the word aerobic, but it also has the word an, which simply means without. So while aerobic respiration was in the presence of oxygen, anaerobic respiration उस respiration को कहते हैं which takes place in the absence of oxygen. So anaerobic respiration कोई पूछे simple one line answer होगा respiration in the absence of oxygen. अब A2 बायोलॉजी में हमें दो तरीके की एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़नी है जो कि दो ही होती हैं। These two types of anaerobic respiration are different when it comes to किस ऑर्गेनिज्म में वो किए जा रहे हैं। मतलब कि जिस तरीके से anaerobic respiration mammals में होती है, that is different compared to the type of anaerobic respiration taking place in yeast cells. तो अब हम देखेंगे two types of anaerobic respiration. The first type of anaerobic respiration will be taking place in yeast cells. अब जिस तरीके की एनाएरोबिक रेस्पिरेशन yeast cells में होती है ना, उसी तरीके की कुछ प्लांट टिश्यूज में भी होती है। Some plant tissues also anaerobically respire just like yeast cells. मतलब वो उनकी respiration is the same as yeast cells and not as the mammals. Mammals की बिल्कुल अलग होती है। So anaerobic respiration yeast cells में and in some plant tissues. तो अगर कोई difference पूछे between the anaerobic respiration of yeast and plant cells, there is no difference. Some plant tissues. Tissues are a group of cells. उसको cells भी लिख सकते हैं, tissues भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा, जो दूसरे टाइप का anaerobic respiration है, that is the anaerobic respiration in mammals, and we'll be looking in detail each of these two types of anaerobic respiration. पहले, the easier one, although it looks like the more difficult one, but it's not, that is anaerobic respiration जो हो रही होती है in yeast cells. Now, when I write the word yeast cells, obviously it is the same as anaerobic in some plant tissues. Same thing. अच्छा, अब ये प्रोसेस काम किस तरीके से करता है? वी लर्नड इन एरोबिक रेस्पिरेशन की एक ऐसा प्रोसेस था which is common to both aerobic and anaerobic. Could you tell that process? Can you repeat your question? अ, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि एक ऐसा स्टेज था which was common to both aerobic and anaerobic respiration.
Glycolysis Glycolysis, correct. And where did glycolysis take place? in the cytoplasm. In the cytoplasm. And why did it take place in the cytoplasm? Because it's an anaerobic process itself. And also an aerobic, meaning it's common to both processes, right? Yeah. या तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अगर कोई स्टेज उसके लिए स्पेसिफिक है सो इफ देयर इज एनी स्टेज स्पेसिफिक टू एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया एनी स्टेज स्पेसिफिक टू एनारोबिक साइटोप्लाज्म एनी स्टेज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक साइटोप्लाज्म तो एक स्टेज जो हमने पढ़ा था कॉमन टू बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन वाज ग्लाइकोलिसिस और वेरी इंपॉर्टेंट दोनों तरीके की रेस्पिरेशन में एरोबिक एंड एनारोबिक एनारोबिक इन यीस्ट एनारोबिक इन मैमल किसी भी तरीके की रेस्पिरेशन में पहला स्टेज विल ऑलवेज बी ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है दैट इज डिफरेंट इन ईच एरोबिक में अलग है यीस्ट सेल्स में एनारोबिक अलग है मैमल्स में एनारोबिक अलग है लेकिन पहला स्टेज हमेशा ग्लाइकोलिसिस होगा एंड ये स्टेज हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा So here we are comparing the two types of anaerobic and we are also comparing anaerobic to aerobic. तो ये होता है साइटोप्लाज्म में in yeast cells and some plant tissues. So this is the process of glycolysis. हम इसको थोड़ा सा फास्ट लेके जाएंगे क्योंकि we already know the glycolysis के process. So we don't need to write कि glucose से glucose. I'll just say it ताकि रिवाइज हो जाए लेकिन मैं लिखूंगा आखिरी वाला मॉलिक्यूल ही because there's no use. ग्लूकोज से बनता है वेट कुड यू टेल ग्लूकोज से क्या बनता है मतलब if you could repeat the entire glycolysis process. Sorry, sir, can you give me a minute? My internet is lagging a lot. Can you just start श्योर या again? टेक योर टाइम मैं भी अपना चेंज कर लेता हूँ if मेरा लैग कर रहा हूँ Yeah, can you hear me now? या आई कैन हियर यू वन सेकंड मैं भी अपना चेंज कर लेता हूँ ये भी Okay. या यू कैन हियर मी टू Yeah, I can. ओके Okay, so सो first we basically in glycolysis we learned that basically glucose first it goes through a phosphorylation reaction in which the energy is used from the conversion of ATP to ADP, and then it goes to isomerism and fructose 6-phosphate is formed, and then it goes through phosphorylation again and ATP is converted into ADP again and fructose 1,6 bisphosphate is formed, and then the fructose 1,6 bisphosphate it splits and forms two molecules of triose phosphate, and these two molecules of triose phosphate are then dehydrogenated, and the two hydrogens are released, and the the hydrogen carrier NAD it gets reduced and forms reduced NAD or NADH, and then basically glycerate 3 phosphate is formed, and then basically substrate level phosphorylation occurs twice, and the ADP वेट converts. वेट वन सेकंड आई थिंक यू कंफ्यूज्ड इट अ बिट वो ग्लिसरेट फॉस्फेट आता है फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में ट्रायोस फॉस्फेट से बनते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड्स Okay, क्योंकि my teacher made me write glycerate 3 phosphate, तो ये गलत है? Oh, instead of the intermediate, all right. Yeah, you can use that, but again, it's another name you have to remember. Yeah, you can use that. Continue. Okay, okay. Nee, I'll just stick to intermediate. Okay, so Yeah. basically an intermediate is formed, and then these intermediates they go through substrate level phosphorylation twice, and ADP is converted into ATP pi- for both molecules of for both intermediate molecules, and basically two pyruvates are formed. Perfect. तो जो net में हमें molecules बने on the side, what were those molecules? Net. Acha, we got two pyruvate molecules, two NADH, and two ATP molecules. Perfect.
तो 2 NADH, 2 पायरुवेट एंड 2 ATP। तो सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं कि जो ग्लूकोज से डायरेक्ट हमें मिला वो क्या था। ग्लूकोज से डायरेक्टली वी डिड द इंटायर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एंड देन वी गॉट 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। अब ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स तो बने, ऑन द साइड वी गॉट 2 ADP which converted to 2 ATP, and then we also got 2 NAD which converted to 2 NADH। ओके, यहां तक सही। अब जब हम बात करते हैं अबाउट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ये सेल्स, तो अब ये जो पायरुवेट है, हमने क्या देखा था, इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स द पायरुवेट मूव्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स थ्रू द VDACs, वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन कैरियर्स। यहाँ पे ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। अब हमने ये अज्यूम कर लिया कि ऑक्सीजन अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अवेलेबल नहीं है। तो अब इस पायरुवेट मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा कि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स अब साइटोप्लाज्म में ही रहेंगे। पहला पॉइंट, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स विल रिमेन इन द साइटोप्लाज्म। और फिर उनके साथ होगा एक रिएक्शन, और उस रिएक्शन में 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे टू इथेनल और इथेनॉल मॉलिक्यूल्स, वट एवर यू, हाउ एवर यू वुड लाइक टू प्रोनाउंस इट। सो 2 इथेनल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। पहले मैं सारे रिएक्शंस एक साथ लिख देता हूँ। 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल से फिर एक और रिएक्शन होता है, और ये बनाता है 2 इथेनॉल रिएक्शन। अब बाय द टाइम ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ऊपर भी कुछ रिएक्शंस चल रहे होते हैं, और एक एक करके हर रिएक्शन को समझते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट रिएक्शन, 2 pyruvate molecules which are in the cytoplasm convert to 2 ethanol molecules। ये कैसे होता है? ये होता है बिकॉज हर पायरुवेट मॉलिक्यूल में से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को हमने निकाल दिया। तो अगर 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स थे, हमने टोटल 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को निकाला, ये पायरुवेट अब कन्वर्ट हो गया एथेनल में। So the process of going from pyruvate to ethanol, what would we name this process of the removal of carbon dioxide? Decarboxylation. Decarboxylation, perfect। 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गए और हमने इसको नेम कर दिया डीकार्बोक्सिलेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन में देख रहे थे डीकार्बोक्सिलेशन, वहां पे एज सच कोई एंजाइम्स के नाम नहीं आ रहे थे कि डीकार्बोक्सिलेशन में कौन असिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि कौन सा एंजाइम असिस्ट कर रहा है डीकार्बोक्सिलेशन में। और इसका नाम याद रखना बहुत सिंपल है। वो कैसे याद रखेंगे, अगर हमें ये पता हो कि रिएक्शन में चल क्या है, पायरुवेट है और पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, तो उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। वेरी वेरी सिंपल। उसका नाम, उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट decarboxylase। Now, decarboxylase. Now, as we have seen in all of the enzymes, whether it be lipase, uh, protease, carbohydrase, pyruvate decarboxylase, ethanol dehydrogenase, मतलब आप किसी भी एंजाइम को देखो, तो उसमें जो आखिरी 3 लेटर्स है ASE, वो डिनोट करते हैं कि ये एक एंजाइम है। So the 3 letters ASE are for denoting it's an enzyme। बाकी का क्या लिखा हुआ है, pyruvate decarbox, मीनिंग कि pyruvate is undergoing decarboxylation। तो अब अगर हम इस पूरे वर्ड को फिर से पढ़ें, pyruvate decarboxylase, तो इससे समझ ही आना चाहिए कि एक ऐसा एंजाइम है जो कि पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन में मदद कर रहा है। सिंपल एज दैट। तो ये हो गई पायरुवेट मॉलिक्यूल्स की डीकार्बोक्सिलेशन, and through this process we got 2 कार्बन डाइऑक्साइड molecules too। अच्छा, अब होता ये है कि 2 ethanol molecules प्रोड्यूस हो जाते हैं। यू टेक केमिस्ट्री टू, राइट? Yeah, I do. Right, so ethanol, or you would know that it's from the family of aldehydes, the CH3CHO। Yes. राइट, तो अगर इथेनॉल का हम
फॉर्मूला लिखने जाए तो वो होगा C2H5CHO, क्योंकि जो इथेनॉल होता है ना, इथेनॉल का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1CHO। इसका मतलब क्या है? This n here represents the number of carbon atoms. So let's say I had two carbon atoms. तो मैं यहाँ पे 2 लिखता। H के लिए 2 को n से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को इन दिस केस 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स 4 प्लस 1 इज 5। सो C2H5, और ये CHO को नीचे ले आया, C2H5CHO। दिस इज हाउ आई मेक द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी एल्डिहाइड। और मैंने 2 क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि एथ का मतलब होता है 2। सो C2H5CHO बना लिया। When I write ethanol, that is essential. One second. राइट, इथेनॉल का मतलब 2 होता है, लेकिन यहाँ पे जो n होगा वो n-1 होगा। राइट, आई गॉट कंफ्यूज बिटवीन अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। आई रिपीट दिस। लेट्स से आई यूज द वर्ड एथेनॉल। एथ का मतलब होता है 2, मतलब कि पूरे के पूरे कंपाउंड में 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए। एक कार्बन एटम तो ये ले गया, CHO वाला कार्बन, मीनिंग ऑल आई हैव लेफ्ट इज 1 कार्बन एटम। सो देयरफॉर दिस बिकम्स CH3CHO। राइट, तो मैंने ये लिख दिया। अब इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला, कुड यू टेल मी द केमिकल फॉर्मूला फॉर इथेनॉल? C2H5OH. करेक्ट, C2H5OH। अब हम कंपेयर करते हैं इथेनॉल की, एंड द पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज टू एक्सप्लेन कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। इथेनॉल की CH3CHO और इथेनॉल के केमिकल फॉर्मूलास को कंपेयर करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को सबसे पहले कंपेयर करते हैं। इथेनॉल में 2 कार्बन आइटम्स है, ऑब्वियसली बिकॉज एथ लिखा हुआ है। इथेनॉल में भी 2 कार्बन आइटम्स है, ओके। इथेनॉल में 1 ऑक्सीजन, इथेनॉल में 1 ऑक्सीजन। इथेनॉल में 4 हाइड्रोजन, लेकिन इथेनॉल में 6 हाइड्रोजन होते हैं। You see the difference? There is a difference of 2 hydrogens. Meaning, yeah, you're saying something? No, no, no. Okay. Right. तो मीनिंग यहाँ पे जो डिफरेंस है सारा वो हाइड्रोजन एटम्स का है, कि हाइड्रोजन एटम्स इथेनॉल में ऐड हुए हैं। अब ये जो हाइड्रोजन एटम्स इथेनॉल में ऐड हुए हैं, ये आए कहाँ से? ये आए हैं फ्रॉम अनदर रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस हियर, एंड दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। मतलब कि यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमारा NADH प्रोड्यूस हुआ था। अब यही NADH, 2 NADH कन्वर्ट्स टू 2NAD। तो जो प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस में हुआ था कि NAD की रिडक्शन हो रही है, अब NADH की ऑक्सीडेशन हो रही है। इस प्रोसेस को एक और नाम भी दिया जाता है, इट्स कॉल्ड द रिप्लेनिशिंग ऑफ NAD। क्योंकि ऑब्वियस है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज द वन जो कि मेजोरिटी होती है सेल्स में। अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रही है, तो हमने पिछली क्लास में देखा था व्हाट डज इट मीन, कि जो हाइड्रोजन कैरियर्स है वो तो ब्लॉक हो गए, राइट। इसको समझते हैं कि ब्लॉक कैसे हुए। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, तो कोई फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी नहीं था, मतलब कोई कैरियर वुड नॉट बी फ्री टू एक्ट एज प्रोटॉन पंप्स, तो कोई ग्रेडियंट नहीं बनता, कोई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होती। मतलब कि देयर वुड बी ए ट्रैफिक जैम ऑफ हाइड्रोजन आयॉन्स इन द मैट्रिक्स। अब मुझे ये बताओ कि अगर हाइड्रोजन आयॉन्स मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा हो जाएंगे, विल द हाइड्रोजन कैरियर्स फर्दर ऑक्सीडाइज? No. नो, बिकॉज ये हाइड्रोजन आयंस आ कहाँ से रहे थे? हाइड्रोजन एटम से। और हाइड्रोजन एटम्स कहाँ से आ रहे थे? फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोजन कैरियर्स। जब उनको पता है कि इतने सारे हाइड्रोजन आयंस और एटम्स हैं, व्हाई वुड दे ऑक्सीडाइज? तो वो नहीं होंगे। इसका मतलब दे वुड बी ट्रैप्ड इन द NADH का फॉर्म। वो अपने रिड्यूस्ड स्टेट में ट्रैप हो जाएंगे, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे। तो दे वुड बी ब्लॉक्ड, वी वुड नॉट बी एबल टू गेट NAD एनी टाइम सून। मीनिंग कि इस वक्त जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बॉडी में देयर इज अ लैक ऑफ NAD एंड FAT एंड दीज हाइड्रोजन कैरियर्स। इसका मतलब हमारे पास बहुत थोड़ा सा NAD बचा है, एंड वी शुड नॉट वेस्ट देम। मीनिंग हमें
अब उनकी रिप्लेनिशिंग चाहिए, बार बार एनएडी फॉरन फॉरन से चाहिए, ताकि बार बार ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो और एनर्जी हमें बार बार मिलती रहे। वी ऑलरेडी आर लेफ्ट विथ वेरी लिटिल एनएडी, द मेजॉरिटी इज इन द मैट्रिक्स। तो रिप्लेनिशिंग ऑफ एनएडी की ये इंपॉर्टेंस है कि क्यों करनी पड़ती है रिप्लेनिशिंग, इन ऑर्डर टू अलाउ फॉर मैक्सिमम ग्लाइकोलाइसिस टू टेक प्लेस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर ये रिप्लेशन हमने कर ली, टू एनएडी प्रोड्यूस हो गए। बिकॉज ऑफ दिस, टू हाइड्रोजन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन कैरियर। ये दो हाइड्रोजन एटम्स अब यहाँ पे ऐड होते हैं, एंड दे मेक फ्रॉम टू एथेनॉल टू टू एथेनॉल। अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है एसेंशियली, इस रिएक्शन में इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, इथेनॉल फर्मेंट हो रहा है। तो इस रिएक्शन का नाम हम कहते हैं ethanol fermentation. You would have learned about, or you would have heard about words, the fermentation of this, fermentation of that. Have you heard of those words? Yes. So fermentation is simply a different process or a similar process under the category of producing. मतलब उसकी प्रोडक्शन का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, बट वो प्रोड्यूस ही चीज हो रही होती है। सो व्हेन आई एम सेइंग कि दिस थिंग इज फर्मेंटिंग, मतलब कि ये चीज प्रोड्यूस हो रही है एक अलग तरीके से। So ethanol is being produced, or in other words, ethanol is being fermented. तो ethanol fermentation हो रही है। यहाँ पे इस एंजाइम का जो नाम है ना, द नेम ऑफ दिस एंजाइम कंट्रोलिंग दिस सेकेंड रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब कि जब पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा था एथेनॉल में, द नेम ऑफ द एंजाइम वाज बेस्ड ऑन द फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट? कि यहाँ पे पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन अंडरगो कर रहा है, तो नाम इसका रख देते हैं पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। एंजाइम का नाम इस रिएक्शन में इज बेस्ड ऑन द बैकवर्ड रिएक्शन। सो व्हाइल ethanol was being hydrogenated to form ethanol, अगर मुझे ethanol से ethanol जाना हो, तो what would I have to do? Would I have to hydrogenation or dehydrogenation? Dehydrogenation? Dehydrogenation, correct. The name of this enzyme, just remember this, you don't need to remember the whole thing. The name of the enzyme is based on the backward reaction. Forward reaction is hydrogenation, backward reaction is dehydrogenation. So the name of the enzyme is ethanol dehydrogenase. ये नाम है enzyme का. For some reason, scientists have labeled it because of the backward reaction and not the forward reaction. So इसका नाम है ethanol dehydrogenase, and मैं यहाँ पे लिख देता हूँ based on the backward reaction. This is an arrow. All right. तो अब इसको थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी अदर एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक में एक चीज सिमिलर है, दैट इज लाइकोलिसिस। वही होती है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इन द मीन टाइम वी गेट टू एडीपी फॉस्फोरिलेटिंग टू फॉर्म टू एटीपी, एंड वी ऑल्सो गेट टू एनएडी विच हैव रिड्यूस्ड टू फॉर्म टू एनएडीएच। अब हमें ये तो पता है कि देर इज अ लैक ऑफ एनएडी इन द बॉडी, मतलब यहाँ पे रिप्लेनिशिंग ऑफ एनएडी भी होगी, कि टू एनएडीएच टू एनएडी में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड टू हाइड्रोजन एटम्स विल बी रिलीज्ड। नाउ पॉज हियर फॉर अ मोमेंट। यहाँ पे जो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं इन द साइटोप्लाज्म, दे अंडरगो अ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो दो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गए, एंड क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है, तो द एंजाइम कंट्रोलिंग दिस इज कॉल्ड पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, जिससे टू पायरुवेट से वी गो टू टू एथेनॉल, टू एथेनॉल से वी गो टू टू एथेनॉल, टू एथेनॉल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। मतलब एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, एथेनॉल फर्मेंट हो रहा है। इस रिएक्शन को, व्हाइल दिस रिएक्शन वाज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एथेनॉल फर्मेंटेशन, and the name of the enzyme is based on the backward reaction which is ethanol dehydrogenase। ये जो दो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे, ये यहाँ पे ऐड होते हैं ताकि हाइड्रोजनेशन इथेनॉल की या रिडक्शन इथेनॉल की जा सके। बिकॉज हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन सेम चीजें होती हैं, हमने पढ़ा है ना, रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। लाइक NAD is getting reduced because it is getting hydrogenated to form NADH। उसी तरीके से इथेनॉल is getting reduced क्योंकि वो हाइड्रोजनेट हो रहा है। सो आई कैन ऑल्सो से
कि जो इथेनॉल की फर्मेंटेशन हो रही है ना, इथेनॉल फर्मेंटेशन is also a reduction reaction. That is it. For anaerobic respiration in yeast and some plant tissues. यहाँ तक कोई questions? No, sir, it's clear. Okay. So अब we move on to the anaerobic respiration in mammals. हम जिस भी चीज की बात कर रहे हो, ये सेल्स, प्लांट टिश्यूज, मैमल्स, एरोबिक, एनारोबिक, कीवर्ड यहाँ पे रेस्पिरेशन। एंड रेस्पिरेशन का पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस। सिंपल एज दैट, दैट्स हाउ यू रिमेंबर इट। जहाँ रेस्पिरेशन लिखा है और वहाँ स्टेजेस बताने का कह रहे हैं, पहला स्टेप ऑलवेज ग्लाइकोलिसिस। दैट वुड गिव यू द मोमेंटम टू स्टार्ट द आंसर। कि अब लेट्स से यू डोंट रिमेंबर द स्टेजेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, बट यू नो कि रेस्पिरेशन हो रही है, तो यू नो कि पहला स्टेज है ग्लाइकोलिसिस हमेशा। यहाँ पे भी पहला स्टेज होगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से वी प्रोड्यूस टू पायरुवेट टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। एंड क्योंकि ग्लाइकोलिसिस है, फ्रॉम 2 ADP इट इज फॉस्फोरिलेटेड टू गेट 2 ATP। अभी तक सेम रिएक्शन चल रहा है जो ऊपर चल रहा था। 2 NADH कन्वर्ट टू 2 NAD। यहाँ तक बिल्कुल परफेक्टली सेम है। इनफैक्ट it also goes from 2 NADH, मतलब 2 NAD से 2 NADH बन गया, 2 NADH से 2 NAD भी वापस बनता है। मतलब इन अदर वर्ड्स आई एम टॉकिंग अबाउट द रिप्लेनिशिंग ऑफ NAD। यहाँ तक द प्रोसेस इज द एग्जैक्ट सेम जो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन देख रहे थे इन ये सेल्स। सो रिप्लेनिशिंग ऑफ NAD। तो फिर इनको अलग अलग एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों बोला जाता है, मतलब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आएगा अब। पहले वाले तरीके के एनारोबिक रेस्पिरेशन ये सेल्स वाले में पायरुवेट कन्वर्टेड टू एथेनल, एथेनल कन्वर्टेड टू एथेनॉल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन होता है, और वो क्या है? ये जो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, विच अगेन आर इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस भी साइटोप्लाज्म में हुआ है। ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि ये बन जाते हैं, दे कन्वर्ट टू 2 लैक्टेट मॉलिक्यूल्स। दे कन्वर्ट टू 2 लैक्टेट मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि इट इज द ओनली रिएक्शन टेकिंग प्लेस विथ पायरुवेट जिससे कन्वर्ट होकर 2 लैक्टेट बन गया। सो देयरफॉर इट इज दिस रिएक्शन जहां पे ये हाइड्रोजन जो रिप्लेनिशिंग ऑफ NAD के वक्त रिलीज हुआ था, ये यहाँ पे अब यूज होता है। मीनिंग दिस इज ऑल्सो अनदर हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे लैक्टेट ऊपर अगर हम देखते हैं तो इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा था, तो हमने इसको नाम दे दिया इथेनॉल फर्मेंटेशन। यहाँ पे लैक्टेट प्रोड्यूस हो रहा है, सो व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? Lactate fermentation? लैक्टेट फर्मेंटेशन, करेक्ट। तो यहाँ पे नाम दे दिया लैक्टेट। पर द नेम्स आर वेरी वेरी सिंपल टू रिमेम्बर इन द एरोबिक रेस्पिरेशन का टॉपिक, वेदर इट बी द एंजाइम्स, द नेम ऑफ द रिएक्शन। ये हो गया लैक्टेट फर्मेंटेशन। एंड वी नो दैट दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन या अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कुछ भी लिख सकते हैं, आइदर ऑफ द टू, रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन। नाउ इस रिएक्शन को एंजाइमेटिकली कंट्रोल किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में इस रिएक्शन को एक एंजाइम कंट्रोल करता है। अगर इस रिएक्शन को एक एंजाइम कंट्रोल करता है तो उस एंजाइम का कोई नाम भी होगा। अगेन हियर द नेम ऑफ द एंजाइम इज बेस्ड ऑन द बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे जब लैक्टेट फर्मेंट हो रहा था, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो रहा था, इफ वी गो टू द बैकवर्ड रिएक्शन व्हाट विल लैक्टेट अंडरगो, डीहाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजनेशन? Dehydrogenation. Dehydrogenation.
तो यहाँ पे द नेम ऑफ द एंजाइम इज लैक्टेट dehydrogenase. So the name, I'll write it here, lactate dehydrogenase, मतलब ये उस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है ना, विच अलाउज द बैकवर्ड, इट्स इफ वो बैकवर्ड को कंट्रोल कर रहा है, कि मतलब अब लैक्टेट पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा, मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेशन अंडरगो करेगा. So the name is lactate dehydrogenase. Now one very very important thing. One second, I just write this thing down. Based on the backward reaction. अब इस इन दोनों के जो नाम है ना, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज या इथेनॉल डिहाइड्रोजनेज, दे आर बेस्ड ऑन द बैकवर्ड रिएक्शन. बट विच रिएक्शन डू दे कंट्रोल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड? Both. They control the forward reaction and the backward reaction, because इनका जो नाम है, जैसे lactate dehydrogenase, it matches up with the backward reaction, लेकिन it also controls the forward reaction. जो दोनों रिएक्शंस होते हैं, इनकी एक्टिव साइट इस तरीके से होती है कि पायरुवेट मॉलिक्यूल भी आ सकता है और वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टेट मॉलिक्यूल भी आ सकता है और वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा. It controls both sides of the chemical reaction, but the naming is based on the backward chemical reaction. Simple as that. Right. यहाँ तक हो गया. अब let's talk about the differences between ethanol fermentation and lactate fermentation. So if I write ethanol fermentation here and lactate fermentation here, ethanol fermentation की सबसे पहली चीज, once ethanol is produced, once ethanol is produced, it cannot be metabolized to become part of the respiratory cycle again. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम यहाँ पे कर रहे थे वो क्या था? एनारोबिक रेस्पिरेशन था. एंड ये हम कर रहे थे बिकॉज बॉडी को एनर्जी की सख्त जरूरत थी और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था. दिस इज वेयर यू रिजॉर्ट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ पे हुआ ये, टू पायरुवेट से टू एथेनल से टू एथेनॉल. एक बार इथेनॉल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए ना, दे कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड टू बिकम पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल अगेन. मतलब from ethanol, you cannot go back to produce pyruvate. You can just not go back. And because you cannot go back, अब pyruvate produce वापस से नहीं हो सकता. इसका मतलब कि let's say, now let's take an example. पहले ऑक्सीजन सेल में अवेलेबल नहीं था, राइट? दिस इज एन एग्जांपल कि इन द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ रनिंग ऑक्सीजन वाज नॉट अवेलेबल इन द सेल. ओके, मीनिंग आई वुड हैव टू रिसोर्ट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन पायरुवेट, सॉरी इन द यीस्ट सेल्स. अब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब कि टू इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है. If two ethanol is being produced and now after 10 minutes in the yeast cells, oxygen is available. मतलब कि अब अगर आई हैड पायरुवेट, ये चला जाता मैट्रिक्स में. लेकिन कैन आई हैव पायरुवेट राइट नाउ? नो, बिकॉज इथेनॉल प्रोड्यूस हो चुका है. इथेनॉल कैन नॉट बैक ट्रैक टू फॉर्म पायरुवेट अगेन. सो आई रिपीट दिस. लेट्स से फ्रॉम 7 p.m. टू 7:10 p.m. ये सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये सेल को एनर्जी की जरूरत थी, तो उन्होंने anaerobic respiration पे रिजॉर्ट किया एंड दे प्रोड्यूस्ड टू इथेनॉल मॉलिक्यूल्स. After 10 minutes, oxygen is available. So now they go back to aerobic. But for that, they cannot use these two pyruvate molecules because it has already converted to ethanol. Pyruvate again. ये छोटी सी बात थी. So once produced, ethanol cannot be metabolized. Sure, ethanol can be metabolized to something else, but it cannot be metabolized to become part of the respiratory cycle. अब उससे हम एनर्जी नहीं निकाल सकते, उसको हम रेस्पिरेशन की साइकिल का हिस्सा नहीं बना सकते. सो इट कैन नॉट बी metabolized in which form? To become
part of the respiratory cycle again. Think of it as a waste of energy. एक बार एथेनॉल प्रोड्यूस हो गया, ओ देयर गोज माय एनर्जी, जाया हो गई सारी, क्योंकि मैं उसको वापस से बैक ट्रैक तो कर नहीं सकता। टू बिकम पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल, तो जब 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 भी इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, एनर्जी वेस्टेज हैपेंस बिकॉज नाउ आई कैन नॉट रिट्रीव द एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन एथेनॉल। लैक्टेट फर्मेंटेशन में इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। द lactate produced can be converted back to pyruvate. Now give me a second. My pencil की चार्जिंग थोड़ी सी कम हो गई है, 1 मिनट में वो चार्ज हो जाएगी, 1 सेकेंड। राइट, मैंने दूसरी पेंसिल ले ली है। ओके, मैं यहाँ पे एक चीज पहले क्लियर कर दूं। आई थिंक आई माइट हैव सेड द ऑपोजिट थिंग, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये जो इथेनॉल इथेनॉल में प्रोड्यूस हो रहा है, द इथेनॉल फर्मेंटेशन, डिड आई से इट वाज अ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन? एक मिनट किधर द फर्मेंटेशन। इथेनॉल से इथेनॉल। नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा। आई थिंक यू सेड इट वाज आई डोंट रिमेंबर। Wait, so let me just clear that out. जो इथेनॉल से इथेनॉल है, दैट इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये बहुत जरूरी चीज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिस पॉइंट नाउ मेक सेंस कि जो इथेनॉल है वो क्यों बैकट्रैक नहीं कर सकता। Why cannot it become ethanol again and then pyruvate again? क्योंकि यही वाला रिएक्शन इरिवर्सिबल है। सो जो एंजाइम है, जिस एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, इथेनॉल डीहाइड्रोजनेज, इट ओनली कंट्रोल्स द फॉरवर्ड रिएक्शन because there is no backward reaction. But the name is based on the backward reaction. So, ethanol to ethanol, hydrogenation, that's the forward reaction जो ये enzyme control करते हैं, लेकिन इसका नाम is based on the backward reaction which does not exist. Simple. लेकिन सर एक मिनट, सो इट्स नॉट अ yeah, रिवर्सिबल रिएक्शन? yeah, it's irreversible. It's not reversible. Because like in my class I also wrote like that it's a reversible reaction. No, let me just open the book 1 second and let me just check it again. Okay, thank you so much. Yeah. ओके, नाउ आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन कि क्यों ये रिवर्सिबल नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि पायरुवेट यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा था इथेनॉल में, और किसके जरिए? डी कार्बोक्सिलेशन के जरिए। डी कार्बोक्सिलेशन इज ऑलवेज अ वन वे प्रोसेस, मतलब वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। किसी चीज में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है तो उस चीज में कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस ऐड नहीं कर सकते। सो इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल टू गो फ्रॉम इथेनॉल टू पायरुवेट। So the reaction to go from ethanol to pyruvate is not reversible. This reaction is irreversible. The ethanol dehydrogenase controls only one reaction possible, which is the forward reaction. लेकिन उसका नाम जो है is based on the backward reaction. Let me for a second opinion just Google it. And is ethanol fermentation reversible? Yeah. No, ethanol fermentation is generally considered irreversible under physiological conditions, right? It makes sense. क्योंकि decarboxylation का process ही one way है। लेकिन if we talk about anaerobic respiration in mammals, यहाँ पे क्या decarboxylation हो रही है? In anaerobic respiration mammals, no, I don't think so. नो, decarboxylation यहाँ पे नहीं हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पे decarboxylation नहीं हो रही है, meaning this reaction can go forward and backward.
तो दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसीलिए द लैक्टेट जो प्रोड्यूस होता है, इट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू पाइरूवेट। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट हियर। ओके, मैं एक बार इसकी खत्म कर दूं ये टेबल, एंड देन आई कैन रिवाइज द मैमल्स वाली एनारोबिक अगेन। ओके, अब ये जो लैक्टेट पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, मतलब द मूवमेंट ऑफ पाइरूवेट टू लैक्टेट, वो तो हमने देख ली, लैक्टेट फर्मेंटेशन। बट व्हाट अबाउट द कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट टू पाइरूवेट, मतलब द बैकवर्ड रिएक्शन। इस बैकवर्ड रिएक्शन को एक कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, या एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर? लैक्टेट मॉलिक्यूल is gaining oxygen, and then it is converting to pyruvate plus water. तो इफ आई गो बैकवर्ड, लैक्टेट में अगर मैं ऑक्सीजन ऐड करूं, नाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं ऐसे बोलूं कि लैक्टेट है, अब मैंने बैकवर्ड के पायरुवेट बन गया। नो 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 नो, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिएक्शन कंडीशंस। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, एंड में वाटर प्रोड्यूस होता है। ऑल ऑफ दिस इज नॉट मेंशन्ड हियर बिकॉज ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। So lactate, if you add oxygen to it, it forms pyruvate and water. अब ये जो water है, water प्रोड्यूस हुआ है। What type of reaction can I call it if water is being produced? Could you tell me the name of the reaction? Condensation? Correct. इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि वाटर प्रोड्यूस हुआ है, एंड बिकॉज इट्स द रिवर्स ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। अनदर वे टू प्रूव कि ये रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है। तो इधर यू कैन रिमेंबर इट कि इसको ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिवर्स हो रहा है, दैट्स वन वे टू रिमेंबर इट। और किस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और अब ये जो पायरुवेट हमने प्रोड्यूस किया, दिस पायरुवेट हियर, this can be used in aerobic respiration again. It can be used in aerobic respiration again. अब जब mammals में, if you are on a marathon, थोड़ी देर बाद you come to rest. Now the lactate gets converted into pyruvate using oxygen. और ये pyruvate अब जाता है mitochondrial matrix में क्योंकि अब oxygen is available in the cell. So it can be used in aerobic respiration. So becomes part of the respiratory cycle. Okay, अब मैं एक स्टोरी बताता हूँ, और उसके जरिए वी विल बी एबल टू रिवाइज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मैमल्स, और एक आगे का बहुत जरूरी पॉइंट कि लैक्टेट ऐसे क्यों कन्वर्ट करता है टू पायरुवेट। ये पूरी चीज यहाँ पे स्टोरी के थ्रू समझ आ जाएगी। So let's say I was on a run, मतलब I was in a hurdle race, and obviously when I'm running, मुझे एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पहले तो मेरे सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल था। सो व्हाट वाज आई डूइंग एरोबिक एट फर्स्ट और एनारोबिक? Um, Anaerobic? ऑक्सीजन वाज अवेलेबल इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो Acha, फिर मैं क्या कर oxygen. रहा Then I think aerobic, right? Because oxygen. हूँ? Correct. So if I'm just starting off the race, I am in just 2 seconds into the race, और मेरी सेल में इस वक्त ऑक्सीजन अवेलेबल है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो मैं एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हूँ। स्लोली स्लोली मेरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। देयर इज नो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट। बट नाउ आई एम रनिंग, आई एम स्टिल इन द रेस, मतलब अब मुझे एनर्जी की जरूरत है, मेरे मसल्स को एनर्जी की जरूरत है। सो नाउ व्हाट द बॉडी डज इज, वो कहती है अच्छा ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, हम एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। सो दे रिजॉर्ट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मैमल्स वाला प्रोसेस, जहां पे मेरे सेल्स के अंदर ग्लूकोज टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। यहां से मिलती है मुझे 2 ATP जो मैं यूज करता हूँ एज एनर्जी, and in the meantime, I also get 2 NAD converted to 2 NADH. यहाँ तक सही है? Yes, sir. ओके। अब क्या हुआ कि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए।
नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, मेरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अभी भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो ये पायरुवेट अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो जाएगा नहीं, क्योंकि एनारोबिक हो रही है। इंस्टेड व्हाट हैपेंस इज, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स अब कन्वर्ट हो जाएंगे, टू पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू टू लैक्टेट मॉलिक्यूल्स। और ये प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है? रिप्लेनिशिंग ऑफ एनएडी जो हो रही थी, पहले तो एनएडीएच बना, अब रिप्लेनिशिंग ऑफ एनएडी हो रही है, मतलब मुझे एनएडी अब वापस बनाना है, विच मीन्स कि मुझे ये टू एनएडीएच में से दो हाइड्रोजन रिमूव करके टू एनएडी बनाना है। यहां से मैंने दो हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, अब ये दो हाइड्रोजन का क्या करूं? ये दो हाइड्रोजन इस रिएक्शन में यूज होंगे, इस रिएक्शन में ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, लैक्टेट फर्मेंटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन नाम है: रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन, लैक्टेट फर्मेंटेशन। अब ये लैक्टेट फर्मेंटेशन का रिएक्शन हो गया। ये लैक्टेट फर्मेंटेशन एक ऐसा रिएक्शन है विच इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम जिसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ओनली द नेम इज बेस्ड ऑन द बैकवर्ड रिएक्शन। यहां तक सही है। नाउ मेरी जो रन थी, जो रेस थी, वो अब कंप्लीट हो गई। अब नाउ आई एम रेस्टिंग, आई एम सिटिंग डाउन। मेरा हार्ट रेट अभी भी बहुत ज्यादा तेज है। यू नो हाउ यू रन अ लॉट एंड देन इवन व्हेन यू आर एट अ स्टॉप बहुत ज्यादा ब्रीथिंग हो रही होती है, यू हैव कंप्लीटली स्टॉप लेकिन फिर भी बहुत ब्रीथिंग हो रही होती है, राइट? Yeah. तो वो जो डेप्थ है ब्रीथिंग की, कि फर्स्ट यू आर टेकिंग स्मॉल स्मॉल ब्रेथ्स, राइट, ऊपर नीचे, बट देन यू आर टेकिंग लॉन्गर ब्रेथ्स एंड देन यू आर टेकिंग डीपर ब्रेथ्स। तो ये जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है एंड ये जो डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग है, पहला तो रेट, यू आर ब्रीथिंग इन एंड आउट वेरी फास्ट, और जो डेप्थ है, यू आर टेकिंग लॉन्गर ब्रेथ्स इन एंड आउट, ये दोनों तेज हो जाती हैं इवन आफ्टर यू हैव कंप्लीटली स्टॉप। रेट ऑफ ब्रीथिंग, डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग तेज हो गई, इवन योर हार्ट बीट इज फास्ट आफ्टर यू हैव कंप्लीटली स्टॉप्ड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा सेल्स के अंदर लाना होता है आफ्टर यू हैव कंप्लीटली स्टॉप्ड। अब बॉडी क्यों ऐसे कर रही है कि उसको ऑक्सीजन मैक्सिमम क्यों लाना है? इसको इसलिए लाना है क्योंकि हमारी बॉडी के इस वक्त सेल्स में लैक्टेट प्रेजेंट है। लैक्टेट इज एसिडिक, सो इट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन। How will it be broken down? It will be broken down in an oxidation reaction in the presence of oxygen. So अगर हमारी बॉडी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लाएगी, यही ऑक्सीजन को यूज करके लैक्टेट को ब्रेक डाउन किया जाएगा और उससे वापस से पायरुवेट और वाटर बनाया जाएगा। So this is the oxygen which our body was taken in because of the high rate and high depth of breathing, और ज्यादा जो हार्ट की हार्ट बीट थी इवन आफ्टर यू हैव स्टॉप्ड, वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए था ताकि लैक्टेट खत्म हो सके। सो मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, लैक्टेट इज एसिडिक। कुछ कुछ बच्चे पूछते हैं कि व्हाट्स द नीड टू बी सो क्विक, ये इमरजेंसी क्यों है लैक्टेट को खत्म करने की? वो इसलिए क्योंकि लैक्टेट एसिडिक है। अगर वो ब्लड में चला गया, और वो चला जाता है क्योंकि बस बट ब्लड की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हुई हुई होती है, पल्स इज रियली हाई, तो वो ब्लड में ट्रैवल कर रहा होता है मसल्स के अंदर से जाने के बाद, मीनिंग इट्स लोअरिंग द ब्लड पीएच बिकॉज इट्स एन एसिडिक सब्सटेंस। सो लैक्टेट इज एसिडिक, it lowers the blood pH. Now, correct, lactate is produced in the muscles, but again, blood is also traveling through the muscles. तो ये लैक्टेट पे ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है, ये ब्लड की पीएच को कम करता है। सो needs to be broken down. Now, how can it be broken down? It can be broken down in the presence of oxygen. In an oxidation reaction, lactate plus oxygen makes pyruvate plus water. अब ये जो ऑक्सीजन है, ये आया किस तरीके से? बिकॉज ऑफ अ हाई रेट ऑफ ब्रीथिंग, बिकॉज ऑफ अ हाई डेप्थ ऑफ breathing, and because of increased heart rate.
मतलब जो आपका हार्ट है वो इट्स बीटिंग मोर देन नॉर्मल, मोर देन यूजुअल। जो हार्ट की हार्ट बीट होती है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इन तीनों से क्या होता है? इन तीनों चीजों से मैक्सिमम ऑक्सीजन सेल्स के अंदर आ जाता है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जब ये लैक्टेट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये लैक्टेट प्रोड्यूस होता है ना, whenever lactate is produced, it creates something called an oxygen debt in the body. मतलब the way we can understand, I repeat this first, lactate जब प्रोड्यूस होता है, it creates an oxygen debt in the body, debt as in DEBT। लेकिन इसको हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि लैक्टेट प्रोड्यूस हुआ है तो ऑक्सीजन डेट ही क्रिएट हो गया? बिकॉज लैक्टेट प्रोड्यूस हुआ ही क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज ऑक्सीजन वॉज नॉट अवेलेबल इन द बॉडी। लेकिन एनर्जी तो चाहिए बॉडी को। तो अब लैक्टेट प्रोड्यूस हो गया क्योंकि हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। सो व्हेन लैक्टेट इज प्रोड्यूस्ड, व्हेन lactate is produced, it creates an oxygen debt इन द बॉडी। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, जब लैक्टेट प्रोड्यूस होता है तो बॉडी में ऑक्सीजन डेट क्रिएट होता है। When lactate is produced, oxygen debt is created. So how will the oxygen debt be removed? What should happen to the lactate? Basically, oxygen needs to be repaid, so I think the lactate is going to needs to be broken down, or basically, I think it's going to convert into the pyruvate and reverse glycolysis, as far as I did in my class. Basically, reverse glycolysis happens, and glucose is formed, and in glucose, there's glycogenesis that happens, and glucose is turned into glycogen and it's stored in the liver. राइट। तो हमने, अगर मैं इसको ब्रीफ में बताऊं कि हमने लैक्टेट के साथ पहला स्टेप क्या किया, सो लेट मी आस्क दिस, डिड वी मेक, in order to remove the oxygen debt, did we create more lactate or did we break down the lactate? We broke down the lactate. We broke down the lactate, perfect। जब लैक्टेट प्रोड्यूस हुआ, बॉडी में एक ऑक्सीजन डेट क्रिएट हो गई। मतलब अब अगर मुझे इस ऑक्सीजन डेट को खत्म करना है, मतलब अब मुझे लैक्टेट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सो दिस ऑक्सीजन डेट, I'll come back to what happens to the lactate after that. This oxygen debt is compensated or is removed. This oxygen debt is compensated or removed when all lactate molecules are oxidized। तो लैक्टेट के प्रोड्यूस होने से ऑक्सीजन डेट क्रिएट हो गया। अब मुझे उल्टा करना है कि अब ऑक्सीजन डेट को अगर कंपेंसेट करना है तो इस लैक्टेट को मुझे वापस से कन्वर्ट करना है पायरूवेट में। मतलब लैक्टेट की ऑक्सीडेशन करनी है। ऑल लैक्टेट मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, एंड दिस इज वेयर वी वर डूइंग ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स, ताकि इन ऑर्डर टू अलाउ मैक्सिमम ऑक्सीजन, हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए था इस ऑक्सीजन डेट को खत्म करने के लिए, AKA लैक्टेट को ब्रेक डाउन करने के लिए, तभी तो ऑक्सीजन डेट खत्म हुआ। नाउ ये ऑक्सीजन आता कहाँ से? इन तीन चीजों से, हाई रेट ऑफ ब्रीथिंग, हाई डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट। इन तीन चीजों को कहते हैं EPOC। इट्स कॉल्ड एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। सो दैट्स द, ये बुक में भी लिखा हुआ है, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन consumption. So C is for the consumption, O is for the oxygen, E is for the excess, and P is for post exercise. तो if you just read the sentence, हमें समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, मतलब एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है, द रन हैज फिनिश्ड,
But even now, there is a high rate and depth of breathing and a greater increased heartbeat, which is why, because oxygen is consumed in excess even after the exercise has ended. So excess post exercise ऑक्सीजन कंजम्पशन, इन तीन चीजों को कहते हैं, ये इसीलिए होती है in order to compensate the oxygen debt as fast as possible. ओके, तो नाउ वी अंडरस्टूड कि लैक्टेट अब ऑक्सीडाइज होता है पायरुवेट बनाने के लिए. सो लैक्टेट प्लस ऑक्सीजन मेक्स पायरुवेट प्लस वाटर. अब इस पायरुवेट के पास दो चॉइसेस हैं. ये जो पायरुवेट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, इसके पास अब दो चॉइसेस हैं, और वो दो चॉइसेस क्या हैं? या तो ये पायरुवेट कन्वर्ट हो सकता है एसिटाइल में, AKA द लिंक रिएक्शन, या तो ये पायरुवेट वापस से कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज पे, which as you said earlier is called reverse glycolysis. Now it depends as to what is happening. Let's say oxygen अब mitochondrial matrix में available है. So now it moves through the VDACs into the matrix, the pyruvate, and it undergoes the link reaction to form acetyl, फिर acetyl CoA, फिर Krebs cycle, एंड में बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हुई, एंड देन वी वेंट बैक टू ऑक्सैलोएसिटेट, फिर उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और एंड में बहुत सारा एटीपी प्रोड्यूस प्रोड्यूस हुआ, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ. बट लेट्स से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, सो अब हमने रिवर्स ग्लाइकोलिसिस करके वापस से ग्लूकोज प्रोड्यूस कर दिया. सो दिस इज हाउ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन मैमल्स वर्क. सो ये जो दो चीजें थी, ये बहुत जरूरी थी. क्या? कि लैक्टेट प्रोड्यूस हुआ है, मतलब एक ऑक्सीजन डेट क्रिएट हुआ है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, in order to remove the oxygen debt, I would need to break down or oxidize the lactate. That's the second point. And third point, in order to oxidize the lactate, I would require oxygen. Where does this oxygen come from? EPOC. That's the third point. तो यहाँ तक कोई सवाल तो आप पूछ लो. No, sir, it's clear. All right. So I think we'll end it here today. Acha, just as a side exercise, but before that, could you tell a summary of what we learned today? Just a quick summary. Okay, so basically we learned about the anaerobic pathways of respiration. That basically either it's aerobic or anaerobic glycolysis always takes place, and then basically there were two types of uh, anaerobic respirations, which one of them was lactate fermentation, which occurs in the mammalian muscles, and basically it involves the conversion of pyruvates into lactates. And basically then we learned about the other type of respiration, ethanol fermentation, in which there was a conversion of pyruvate to ethanol and then ethanol to ethanol, and this was an irreversible reaction. And then basically we learned about oxygen, we learned about the differences between both of them. And then we learned about the oxygen depth in the body, how basically it is like repaid and how it is like compensated. And then we learned um, yeah, we mentioned the names of the enzymes, ethanol dehydrogenase and lactate dehydrogenase and pyruvate carboxylase, I think. Yeah. Pyruvate decarboxylase. Oh, yeah. Wait, what? Can you repeat it? Yeah, तो ये वाला जो एंजाइम था which allows for the first reaction in yeast cells was कि pyruvate की decarboxylation हो रही है. So the name is Yeah. simply pyruvate decarboxylase. Okay, thank you so Right, perfect. Acha, our class has ended, but एक question which I would like to ask, जो it's not in the syllabus, but it may serve as extra knowledge. और वो क्या है? कि जो लैक्टेट है, वो ये तो हमें पता है कि वो प्रोड्यूस होता है मसल सेल्स में, क्योंकि मसल सेल्स ही वो सेल्स है ना जो विच रिक्वायर द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड ऑक्सीजन वाज नॉट अवेलेबल, तो एनारोबिक करना पड़ा, जिसके एंड में लैक्टेट प्रोड्यूस हो गए. अब ये लैक्टेट जो है, बिकॉज द ब्लड इज ऑल्सो फ्लोइंग थ्रू द मसल्स की कैपिलरीज, ये लैक्टेट उन ब्लड्स में फ्लो होना शुरू हो गया, ट्रांसफर हो गया.
अब हाउ डज द बॉडी नो कि हमारे ब्लड में लैक्टेट फ्लो कर रहा है? कुड यू टेक अ गेस कि बॉडी को कैसे पता चलता है कि ब्लड में इस वक्त लैक्टेट है? Um, maybe because of like mm, enzymes or something, or maybe like protein complexes, or no, I'm not sure. राइट। तो अब मैं अब करेक्ट आंसर बताता हूँ, बट बिफोर दैट हमारी बॉडी में वो कौन सा हिस्सा है, व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कंट्रोल्स द एंटायर बॉडी, मतलब एवरी सिंगल थिंग वो चीज कंट्रोल करती है, व्हाट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज दैट? The brain. द ब्रेन, करेक्ट। मतलब कि हमारी बॉडी में कुछ भी हो रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग रैंडमली, इट्स नॉट हैपनिंग ड्यू टू चांस। ब्रेन को हर चीज पता होती है, ब्रेन को रेटिना से भी इंफॉर्मेशन जाती है, ब्रेन को दूसरी जगह लिवर से भी इंफॉर्मेशन जाती है, कोई भी चीज अगर हो रही होती है वो ब्रेन के जरिए हो रही होती है। व्हाई इज दैट? बिकॉज द ब्रेन इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। खैर, ये चीज अभी नहीं देखनी है, हमें देखनी ये है कि लैक्टेट ब्लड में फ्लो कर रहा है, ये बॉडी को कैसे पता चलेगा? होगा ये कि the lactate is flowing in the blood. Now the blood moves through all of the parts of the body, including the brain. Now this lactate is acidic. Brain में एक part of the brain होता है which we call the hypothalamus. Have you heard of this word? Hypothalamus? Yeah, I've heard about it. I haven't like researched into it. Yeah, so But yeah, it's I've just heard. it's just a part of the brain. तो अब होता ये है कि जब ब्लड पूरी बॉडी के थ्रू फ्लो कर रहा होता है, तो अब ये हाइपोथैलेमस विच इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन उसके थ्रू भी फ्लो कर रहा होता है। और ये लैक्टेट क्या है? एसिडिक है। मतलब कि दिस लैक्टेट लोअर्स द ब्लड पीएच। मतलब कि अब जो ब्लड है विच इज इन द हाइपोथैलेमस उसका पीएच कम हो गया, करेक्ट? Yeah. सो दिस सेंड्स अ सिग्नल। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? उसने ये डिटेक्ट कर लिया कि मेरे थ्रू जो ब्लड फ्लो कर रहा है, हाइपोथैलेमस के थ्रू जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका पीएच कम हो गया, विच ऑब्वियसली मीन्स कि लैक्टेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब वो क्या करेगा? वो एक सिग्नल पहला भेजेगा हार्ट को कि यू नीड टू बीट फास्टर। वो एक सिग्नल भेजेगा लंग्स को कि यू नीड टू हैव अ हायर रेट ऑफ ब्रीथिंग, यू नीड टू हैव अ हायर डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। ये तीन चीजें करने से, विच इज कॉल्ड ईपॉक, वो क्या करेगा? The hypothalamus will allow for more and more oxygen to come into the body. उसकी वजह से क्या होगा? लैक्टेट ज्यादा से ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, बिकॉज किसी भी एसिडिक सब्सटेंस का अननेसेसरी प्रेजेंस होना इन द ब्लड हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से अगर ब्लड का पीएच कम हो जाए तो वो सारी चीजों को हार्म कर सकती है, वो सारी चीजें ब्रेक डाउन हो सकती हैं, विच कुड रियली लीड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, डेथ समटाइम्स एज वेल। तो दिस इज द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग क्या था, कि बॉडी को पता कैसे चलता है कि लैक्टेट प्रेजेंट है। So you got that part? Even if not, it's not a problem, but let me know if you want me to explain it again. Yeah, I did get it. Thank Alright, perfect. So यहाँ हम एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह we'll start with a few questions और फिर उसके बाद राइस की adaptations and respiratory substrates वाला टॉपिक। you. Okay, inshallah. Alright, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Allah